So This Gurudev, is the fifth day of Rudraksh Brihad Jabalo Upanishad. Tell me. So Gurudev, in the third video, in the later part, you've explained that, not to trust your senses, that all your senses can mislead you, not to completely Yes. trust them. So Gurudev, Okay. in the, like, what do you really trust when you say you go beyond your senses? So what do you really trust? Like, what is the authentication of, what you trust? Okay. This is a beautiful question. Can we repeat that in Hindi? जी गुरुदेव, लेट मी ट्राई. आपने तीसरे वीडियो के लेटर भाग में आपने ये बताया है, समझाया है कि अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से उन पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहो, उनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करो, उन पे भरोसा नहीं करो. तो हम लोग किस चीज पे भरोसा करें? अगर उन पे नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पे हम लोग, जैसे किस पे निर्भर, व्हाट डू यू ऑथेंटिफाई, लाइक? एक स्त्री का एक बच्चा होता है, बराबर है. बच्चा स्त्री पे निर्भर होता है पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से बच्चा स्त्री पे निर्भर होता है और अपने पिता पे भी निर्भर होता है, बराबर है. इसमें तो कोई गलत नहीं है, निर्भर की बात है ये. तो the question is that if we don't have to trust our senses, what must we trust? So a child is in the beginning totally dependent, totally putting his trust and totally, what word did you use in English? Supported. What do we trust if we don't trust? Supported by, anticipated or supported by parents. Now, as the child grows, the parents are also growing. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे माता पिता भी बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, निर्भरता कम होते जाती है. पहले तो करवट भी नहीं ले सकता, करवट लेने के लिए भी आपको उठाना पड़ता है उसको. अपने आप से भी दूध वगैरह मांग नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसको छाती से लगाना पड़ता है. In the beginning, the child cannot even ask for milk, or if he cannot tell the parents that he is feeling cold or hot or whatever. He is totally dependent. Mother feels cold, mother wraps him with a blanket. माँ को ठंडी लगी, माँ ने कंबल पे लपेट दिया उसको. तो बच्चा बहुत ही बंदिश में होता है क्योंकि निर्भर होता है. तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी निर्भर है वो बंधन में, उसकी मर्जी नहीं चलती. The first thing you need to remember is that if you are dependent, you are a slave. You are a bounded labor. You are a bounded slave. And you cannot have your own wish happening. You are not liberated, you are bound. And as the child grows, he becomes more responsible. The more responsible he becomes, the less dependency. And as the parents grow old, they become dependent on the child. So they are now totally dependent on the child, and the child is totally powerful and totally responsible in the old age. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माता पिता भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा आत्मनिर्भर बनते जाता है और माता पिता बच्चे पे निर्भर धीरे धीरे होते जाते हैं. और फिर पूर्ण तरीके से जैसे बच्चा माता पिता पे निर्भर है, वैसे माता पिता बच्चे पे निर्भर हो जाते हैं. उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों पे हम पूर्ण तरीके से निर्भर है. हम बच्चे हैं और एक रात में परिवर्तन नहीं आएगा कि तुम्हारी इंद्रियां तुम पे निर्भर हो जाए. तुम जैसे 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 कम निर्भर होना शुरू कर दोगे, बड़े होना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे तुम्हारी इंद्रियां धीरे धीरे बूढ़ी होती जाएगी और वो पूर्ण तरीके से तुम्हारे पे निर्धारित होगी.
In the same way, when you are totally dependent on your senses, slowly and gradually, with practice, with slowly moving ahead, slowly, as you become self-independent, your your senses will start retiring. And when they will start retiring, a day will come that they will completely retire and they will be dependent on you. For example, one day a group of mentors gave me a call. And they said, Guruji, this person is saying so and so about you. Now, how did I get that information? Via my senses. And if I will react, my senses are guiding me to do good or bad in my life. Of course, I don't believe in good or bad. हाँ हाँ, हिंदी में भी बता ही रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, दोनों भाषा में बता रहा हूँ एकदम. So my senses are leading me to do whatever I am doing. I told them, okay, let that person say. No, it is giving you a bad name. It is giving organization a bad name. Let it give. This person is doing this. This person is doing this. This person is saying this. This. I said, okay, let them say. Let them do whatever they want. My senses have given me this information. I will only respond when I want to. And that response will only and only come when it is affecting my being, my soul, my existence. हिमांशु बार बार ज्वाइन और लीव करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, तुमको समझ जाओ अभी. So my existence, if it is getting affected, then I will respond. तो इंद्रियां एक बार मुक्त हो गई, निवृत्त हो गई, वो निवृत्त होते ही तुम्हारा कब्जा समझ लेना पूर्ण तरीके से बैठ गया. अब कल परसों की बात है, 3 दिन हुए एक बड़ी पूजा हमने, राजराजेश्वर बलि और चक्र पूजा. उसमें एक पुरानी शिष्या मेरी आई थी. उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे उनको पाठ सिखाना है. बोला ये सब नहीं करना. नहीं नहीं, वो लोग मुझे ये कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं, मैं तो करूंगा. मैंने कहा करो. फिर उसने कहा देखो, मैं आपको कह रही थी ना, मुझे एक एक मैंने शत्रुओं को देख लिया, मैंने ऐसा ऐसा पूजा किया. मैं बोला ठीक है. बोलता है उसमें तुझे कैसे पता चला कि शत्रुओं को तूने ठीक कर दिया? कहा मुझे अलग अलग शत्रु की खुशबू आ रही. बोला अच्छा, कैसी कैसी खुशबू आई? तो उसने बता दिया चंदन, भस्म और घी की भी आई थी एक बार. चंदन, भस्म और घी, ये तो मैं ही आजकल घी और भस्म का दवाई लगा रहा हूँ, और चंदन की खुशबू मेरे में से अनायास आती है. मैंने चंदन लगाया हो ना लगाया हो, मैं सोता भी हूँ तो मेरे में से चंदन की खुशबू आते रहती है. तारा दुर्गा जी हंस रहे, उनके घर पे चंदन की खुशबू आती है. किसी उनके घर वालों को लगता है कि गुरु जी है. तो बोला तूने मेरे को लिया था शत्रु? बोला नहीं नहीं नहीं. बोला झूठ बोल रही. नहीं बोल रही, मैंने बोला जो जो मेरे शत्रु. बोला झूठ मत बोल. मैंने बोला होगा. अब उसको ऐसा भयभीत हो रहा है. अभी मैंने बता दिया गलती से, अभी तो मेरी शामत आ जाएगी, पता नहीं गुरुदेव क्या करेंगे. मुझे कुछ नहीं करना है. तुम कर रहे हो ना मेरा नुकसान, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ही कर रहे हो, करते रहो. उससे शरीर को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरे मन को नुकसान पहुंचा रहे हो. वो मैं हूं ही नहीं. तुम समझ रहे हो कि वो मैं हूं.
तो इसके लिए तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए संभव है मेरा नुकसान करना। मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं प्रतिक्रिया तब दूंगा जब तुम मेरी आत्मा को हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वही मैं हूं जो कुछ भी नहीं है, भस्म आत्मा। तो तभी तभी ऐसा लगता है कि हम इंद्रियों के वश में नहीं। पर ये एक रात में नहीं होगा। एक रात में बच्चा पैंट पहन के, कोट पहन के शादी के मंडप में नहीं चला जाता है। उसको 25 साल तैयार करना पड़ता है। पॉटी ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ सिखाना पड़ेगा, चलना सिखाना पड़ेगा, बोलना सिखाना पड़ेगा, तब वो अपनी अस्तित्व को जानेगा। तो धीरे धीरे करके अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इतना जागृत करो कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर आत्मा। आत्मा पे अगर आपकी पकड़ हो जाएगी तो इंद्रियों पे भरोसा अपने आप छूटने लगेगा। और वो प्रैक्टिस और मेडिटेशन दोनों से हो। और ये स्वर क्लास में भी पता नहीं मुझे तुम थे कि नहीं, भरत थे। भरत है अभी अपनी क्लास में, अगर कोई लैपटॉप पे हो तो देख पाएगा। तो उन्होंने पूछा था, मैंने कहा था कि जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उससे विपरीत ही है। अभी त्राटक का क्लास तारा दुर्गा जी को चालू करना है, लेकिन पता नहीं 5-6 क्लास का मैनुअल हाथ में लेके बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। होगा तब। भरत जी है क्लास। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुदेव, सेकंड वीडियो से मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। आपने निवृत्ति और एफर्टलेसनेस के बारे में बोला है, तो एफर्टलेस हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हो सकते हैं? मैं कैसा एफर्टलेस हूँ अभी, वैसे ही आप रह सकते हैं। एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते दोनों एक ही। एफर्ट का अर्थ है प्रयास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है जिम्मेदारी। हाँ, हिमांशु को ब्लॉक कर दो कोई, वो वापस छोड़ के गया है, उसको ब्लॉक कर दो। एफर्ट अभी वापस आएगा तो उसको अपने आप रिमूव कर देना, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। एक बार तुम रिमूव कर दो। एफर्ट का अर्थ है कि प्रयास करना, जद्दोजहद करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि जिम्मेदारी। तो एफर्टलेस एफर्ट आपके होने चाहिए। उसको तंत्र की भाषा में उद्यम कहते हैं। और जो भी उद्यम करता है वो भैरव स्थिति को प्राप्त करता ही है। एफर्टलेस इस प्रकार से रहा जा सकता है कि मैं अनाथ नहीं, मेरे ऊपर कोई है जो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। एक बार जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, जैसे कि शंभू गुरु जी के, राधिका के, सरिता के, सोनाली, इनको आत्म साक्षात्कार संयुक्त प्राप्त हो गया, तो इनको अभी पता है कि इसके आगे रास्ता है, ये अंत नहीं है। तो ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि कुछ भी हो गया ना, सही गलत, हिमांशु आ गया उसको निकाल दो, जो भी हुआ ना सही गलत, तो गुरु है, गुरु ध्यान रखेंगे, गुरु संभाल लेंगे। और जब वो पता चलता है कि गुरु संभाल लेंगे, तो फिर मैं कहता हूँ मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, या मैं कहता हूँ मैं यूएस से आ रहा हूँ। तो पूरा उद्यम करते हैं वो लोग, पूरी भागदौड़ करते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और पूरा काम संभालते हैं। लेकिन एफर्टलेसली होता है, सर पे चिंता नहीं होती कि कुछ गड़बड़ हो गई तो। मतलब उनके जीवन में उनका सबसे महंगा मेहमान, सबसे बड़ा वीआईपी
आने वाला है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी है, लेकिन वो तैयारी हो रही है, लेकिन कोई भी तनाव नहीं है। अभी वहां पे इंचार्ज है सरिता। अब सरिता जो है वो कहीं बाहर कहीं शादी में घूमने गई है, तो एफर्टलेसली वो उसका काम हो रहा है। उसको पता है कि गुरुजी आने वाले हैं तो सब तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन तनाव के साथ नहीं, विदाउट स्ट्रेस मेहनत करना, उसे एफर्टलेस होना कहते हैं। एफर्टलेस होना नहीं कि पलंग पे आप सो जाओ पैर पे पैर चढ़ा, आई एम एफर्टलेस। काफी लोग एफर्टलेस ऐसे होने को बोलते हैं कि बस मैं सो गया, मैं तो एफर्टलेस हो गया, और फिर मेरे पे इतना कर्जा चढ़ गया, फिर मैं फकीर हो गया। तो वही फकीर होना है। फिर तुमने और तुम्हारे शास्त्रों ने और तुम्हारे तथागतित गुरुओं ने यही तुमको सिखाया है कि फकीर बनो। जीसस क्राइस्ट ने वाव ऑफ पॉवर्टी सबको दी, या इन इंग्लिश ऑल्सो बबीता, हाँ। कि गरीब रहो। काफी सूफी संतों ने कहा फकीर रहो, भिक्षा मांग के खाओ। जैन, बुद्ध, महावीर, नाथ संप्रदाय, सबने कहा भिक्षा मांग, फकीर रहो। तो उसको एफर्टलेस होना नहीं बोलते कि दूसरे कमाए और भिक्षा मांग के खाओ, अपमानित होके। उसको एफर्टलेस होना नहीं बोलते। अंदर से तो तुम जल रहे हो कि गाली दे रहे, तुम जानते नहीं हो मैं एफर्टलेस हूँ, मैं साथ ऑरेंज कपड़ा दिख नहीं रहा है मेरे शरीर पे, भिक्षा दो, अलख निरंजन। ये सब नहीं, इसको एफर्टलेस नहीं बोलते। मेहनत करो, पैसा कमाओ, जियो, अच्छे से जियो, अपना जिम्मेदारी लो, अपने परिवार का जिम्मेदारी लो, पर तनाव के बगैर, विदाउट स्ट्रेस, उसको एफर्टलेस एफर्ट कहते हैं। अभी वो अनीता भी कम को कर रही है, अभी वो भी आई तो उसको निकाल देना। सो द question is, I think so she said from the third video that you have stress on being effortless. So second video, so I said that I have not stressed, because being effortless is being stressless, doing what you have to do, but being effortless without any stress. Like for example, I came for 1 month in America. So I was in America for 1 month. People made big preparations for me to come there and to stay with them and to move around in America. But it wasn't with a lot of stress, or it wasn't with even a pinch of stress. It was totally effortless. It was totally stressless. It was without stress. So do what you have to do, work hard, use your body capacity, your mind capacity to the fullest, but without taking stress. That is known as being effortless. Thank you, Guruji. Yes, thank you, Guruji. Sure. और कोई प्रश्न? Do we have any questions? There was one question when I was logging in. Shambhu is there? Can someone read this question because I'm on the phone, so I will not be able to read. My WhatsApp is on this phone. How many participants are there? Jai Gurudev, there are 23. 23 participants. And how many participants are there on the group? On the group, 66. 66. देखो, आधे हमने वोट किया था तभी हम आए थे। हम पूरी दुनिया छोड़ के तुम्हारे लिए आ जाते हैं, और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जरूरी है हमारे शुभ। Jai Gurudev. Babita, I said in English that I leave the whole world to come and meet you. I love you so much, but you people, the whole world is important for you except me. You don't come.
Your phone rings, I put my phone on aeroplane mode and I connect with you on Wi-Fi. And your phone rings and you get disconnected. No, this is not how you must treat the knowledge which is going to connect you to yourself. Shambhu asked a question and he is such an idiot, he is missing. Shambhu किधर है? Someone read his question. There are 2-3 questions, right? Ji Gurudev, Guruji has asked two Ah. questions. Yeah, tell me. And other questions also, whichever are there, which I have not answered, you can take them now, which I have not answered on the group. Gurudev, Guruji's question, should I read out the first question? Yeah, I saw the third video of Brihad Jabala Upanishad. The meaning of and bliss and how senses play is so well explained. This video has made me see within myself and helped me realize a few mistakes that I have done. Please forgive my ignorance, but if I may ask, as explained, bliss is in the stillness, in bracket he's written Shiva, and Shakti is the vibration within the space. The stillness is in vibration and vice versa. So can we say that the vibration is also bliss, or can we say Shiv and Shakti together as a whole is bliss? If we may please know. and what is the other question? I think no one will understand this answer except him. I didn't Okay, understand the what is- question. Yeah, I know. The that. following question, Gurudev, he's written, you have been kind enough to explain me the vibration and stillness, but for the betterment of everyone, if I may please request, could you please explain the duality or the non-duality of stillness and vibrations? If I may also request you to kindly explain everyone about where the bliss is experienced in the stillness or in the vibrations. एक प्रश्न है, जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शंभु गुरु जी का प्रश्न है, तो उनके लेवल का प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो मुझे अभी दुविधा ये हो रही है, मुझे अभी एफर्ट हो गया है, स्ट्रेस हो गया कि मैं प्रश्न को उत्तर दूं कि नहीं दूं, क्योंकि वो है नहीं। तो आप लोग मुझे जवाब दो, मैं प्रश्न सुनाता हूँ, क्योंकि प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आएगा। जी गुरुदेव। प्रश्न ये है कि अवकाश है, अवकाश मतलब खाली जगह, और खाली जगह शिव है, स्थिरता है, और उसके भीतर चेतना है जिसको ऊर्जा कहते हैं। So I will first explain you the question, and then if you are still awake, you tell me if you want to know the answer. There is empty space, and in the empty space is vibration. Okay? The empty space is stillness, it is Shiva, and the vibrations are Shakti. Okay? And he says that the bliss which is experienced is the third thing. Is it experienced in the vibration or is it experienced in the empty space? अब जो अनुभूति होती है, खासकर उन्होंने एक अनुभूति के बारे में पूछा है जो उनकी गलती है, पर वो गलती तक भी पहुंच गए ना, तुम वहां पहुंच जाओगे जहां शंभु गुरु जी है। मतलब वो गलती करने की भी तुम्हारी अभी स्थिति नहीं है, जो गलती उन्होंने पूछ के की है, वहां तक भी अगर तुम पहुंच गए तो वो तुम्हारे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तुम वहां पहुंचोगे जहाँ शंभु गुरु जी है। तो ये खाली जगह है, और उसके भीतर ये खाली जगह स्थिरता है, शिव है, और उसके भीतर चेतना का नाच चल रहा है। चेतना मतलब ऊर्जा, मतलब वाइब्रेशंस का खेल चल रहा है खाली जगह के भीतर। अब ये जो चेतना है वो शक्ति है, वो उनका कहना है।
वो भी वो उनकी स्थिति तब आओगे तब वो तुम भी वो समझ जाओगे, लेकिन वो स्थिति से आगे गए तो वो भी आपको एक उसमें भी गलती दिखाई देगी। तो कह रहे कि ये शिव है और ये शक्ति है, तो जो अनुभूति होती है, और खासकर आनंद की अनुभूति की उन्होंने बात की है, जो एक गलती है, लेकिन वो गलती शंभो ही कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा लिखा होता तो मैं उसको गलती कहता ही नहीं, क्योंकि तुम वहां पे हो ही नहीं जहाँ पे शंभो है। वहां पे जहाँ पे शंभो है और शंभू ये कह रहा है तो गलती है। और तुम तो ये सवाल पूछ ही नहीं सकते। ये सवाल को मैं समझाऊंगा तो ये जवाब से भी ज्यादा पेचीदा सवाल ही है कि आनंद की अनुभूति चेतना में होती है कि स्थिरता में होती है, शिव में होती है कि शक्ति में होती है। So the experience of bliss is in the Shiva, in the stillness, in the space, or in the energy, in the vibrations, which are within the space, which is known as Shakti. And the second question is that you have made me understand the duality and non-duality of space and energy. Can you repeat it for the betterment of the student? Because he is Shambhu, he loves you, so he starts it. दूसरा प्रश्न ये है कि जो स्थिरता है और जो ऊर्जा है, उसके द्वैत और अद्वैत आपने मेरे को समझाया है कि वो अलग अलग है कि वो एक ही है। तो ये बाकी के शिष्यों को ही जानकारी के लिए, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, अब कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, ये वो बहुत ही सभ्य है, वो मेरी तरह अर्थात कुछ भी बोल नहीं देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बड़ी नम्रता से लिखा है कि शिष्यों के मेहरबानी के लिए, शिष्यों की जानकारी के लिए, शिष्यों की मेहरबानी के लिए। पर उनके कहने का अर्थ यह है कि जिन शिष्यों को मोक्ष प्राप्त हुआ है उनके लिए कृपा करके आप बता सकते हो कि ये क्या है, स्पेस और ऊर्जा, ये दोनों एक है, शिव शक्ति एक है कि अलग अलग है? तो अब मर्जी आपकी, जवाब दूं? Now the wish is yours. You want me to answer? You can unmute and tell me or type. आप अनम्यूट करके कहे या टाइप करो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो खाली खाली हाँ मत बोलना। प्रश्न समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, Gurudev. Babita, you are going to make Shambhu, go into depression. You will ask him so many questions after this. Okay. Then, who else understood the question? और किसको समझ में आया? Stillness is in the vibration. वो कौन है? Who was this? ये कौन था? गुरुदेव सोनाली जी। No, I haven't said anything. My mic is unmute only. I was just trying to read the question and understand it. Okay. But your mic is showing unmute, but still your voice is coming. I think from one instrument you must be on. Yes, Okay. it is. I've kept on because I thought I'll read the question. Read the question and see if you can understand. और एक का ऑडियो भी ऑफ करो, जैसे दोनों का ऑडियो ऑन होगा ना तो एको आएगा। No, एक का ही ऑन है गुरुदेव। बस यही है जवाब प्रीता। No, गुरुदेव। नहीं समझ में आया ना? छोड़ो, मैं शंभू को पर्सनली समझा दूंगा। और कोई प्रश्न है? तुमको समझ में आए वैसे? Are there any more questions on the group which you people can understand? Okay. Gurudev, sorry, my
My internet cut out before. I think I answered incorrectly to the question. But Sarita ji had asked something about moksha and reborn. हाँ Oh my God. I remember that. Tell me. I remember that. You tell me what is the question regarding it? Babita, are you there? Yes, Gurudev, I'm sorry. I have poor connection today. Sarita ji had asked in the query group about moksha being reborn. And yeah, you might have, I remember that. And you might have explained it in Hindi, but because it was in Hindi, I didn't fully understand. So could you explain again? Like, I thought moksha. Did you understand the question also? Do enlightened people have the right to choose whether they will be reborn or not? Yes. So, but no, they don't have the right. But they do have the right that where will they be born again and when will they be born again? That is the right that they have. If that would have been the case, enlightened gurus, avtaras that we say, would have not been born. There are 3 types of enlightened people on the planet. One are like Ram Krishna, my son, who are enlightened before and they are born again because they have compassion towards humanity. Second are like you, who have got enlightenment in this lifetime. And third are like Pritha. All other beings, whether human beings, animals, mosquitoes, germs, all whosoever, they all are God. They all are enlightened. Only the difference between you and those beings is that they don't remember, you remember. Rita does not know that she is God. Rita does not remember that she is God, but she is equal God as you. Rita may be touching my feet, but she is equal God as me. There is no difference between the God in me and the God in Rita. There is no difference between the God in me and the God in you. But still you touch my feet. But that doesn't make my God complete and your God incomplete. My God bigger and your God smaller. Because there are no 2 gods. So enlightened people are born again, but as per their wish and desire. And non-enlightened people are born as per their desires or undone karma. Their desires are undone karma. So if they have so many desires, their soul, their jivva, prana shakti gets divided into so many parts. And it goes into various bodies and takes birth. That is how the population is increasing. So the first thing, as per Ishavasya Upanishad, the first Upanishad of the Rig Veda, the first thing is that your soul will not be divided once you are enlightened. 2 Radhika or 2 Babita cannot be born once you are enlightened. You will be enlightened as one person only. And that birth will be as per your choice, your parents. You will perfectly look for a guru who can enlighten you. For example, Shambhu brought you to self-realization. So you will perfectly mark yourself that I am bored now, staying in the limbo. Now is Hitesh Guruji born? Okay, I will be born before or just before or just behind Hitesh Guruji, and I will again, because once I enter the womb, I will lose my enlightenment. So I have to be born around these people, or I have to be born in such a situation that these people will come hunting for me, even if I am in USA. Okay, Hitesh Guruji is not taking birth.
Where is Shambhu Guruji? Okay, Shambhu Guruji is being born over here. I will be born behind Shambhu Guruji or just before him in the same place or in a place where he will visit to address people. What happens is generally people of your locality, of your nationality, of your religion, of your tribe don't really appreciate you. For them, you are like a chicken made at home. It is as good as, a vegetable made at home. But if you go to a restaurant and if you order the chicken has value. So if you go to a out country to preach them, there you will have a value. But a spiritual man or anyone, an artist, will not have his value in his own land, among his own people. So you might not choose to be born near your Guru, but you will be born where he will come to preach. And you will exactly know that where will he come to preach. You will know where there are a group of people. Okay, Babita, Sarita, Sonali, all are born over here. Okay, in Mongolia. Okay, I will be also born in Mongolia. Okay, these parents are very, orthodox and rigid, and they will not allow me to meet Guruji. So I will be born over here if I am Babita Patel, because I am a rebel. If my parents will not stop me from meeting Guruji, I will go and meet. So I will be born over there. But if I am Radhika, I will be born to a parents who are spiritual and who will take me to Guruji and he tell me, come on, you follow Guruji. So I will be, if I am Radhika, I will be born to a parents who are very spiritual and who are believing in Guruji. But if I am Babita Patel, then I will be born under parents who will tell me, don't go to Guruji. Okay, then I will say, I want to go. Because I have done always the opposite of what the authority tells me to do. Correct, Babita? Yes, Gurudev. So there you have a choice, okay? But not the choice of not being there. Unless and until you don't reach the 10th stage of enlightenment, which is the Bindu. Bindu means Purna Bindu. There is nothing. The mind stops existing. The mind is destroyed completely. Till then, the mind will keep creating body for you. There is no escapism from it. So moving ahead in the stage of enlightenment, it is a big achievement because in so many people, there are so many enlightened people over here, and you are the only one who dares to say that she understood the question of Shambhu. Like if I say that Sayukta, Sonali, these people are all enlightened. They are enlightened because of Shambhu. Shambhu brought them enlightenment. Shambhu brought them to me that this person is ready now. You give enlightenment, give enlightenment. So I gave. Now what happens is if I start rating you people, this is number 1 at enlightenment, this one is number 2 at enlightenment, this one is number 3. How higher is your enlightenment? So if I start giving you grades, if I start giving you rank, from 1 to 10, there will be only one name, Shambhu. At number 11 will come Piyush. Because he does not speak, but very few people know that he has crossed one level of enlightenment. And if you have understood the question of Shambhu, I think at number 12 will be you. Not even your senior. Not even Sarita, not even Sayukta, not even Sonali. If you have understood the question, you are at number 12. And Piyush is, while traveling with me to Pune, and at that time, I didn't have a chauffeur. I don't drive myself because I cannot see in the night from many years. And Piyush was also not driving at that time. He has just started driving. So once he wants to go for a longer tour with me on a drive, I promised him that I will come. So I and Piyush decided, I said, come, today I will take you beyond enlightenment.
You drive and I will be sitting and talking to you. He said, I don't know how to drive, Gurudev. So I said, we'll keep the car. We went to the highway, to the SC stand. And from the SC stand, we took a SC. And in the SC, we sat. And throughout the route in the night, we kept on talking. And I took him beyond enlightenment. But still, he is not at a situation that he can understand this question, what Shambhu has put on. So if I grade you people in enlightenment, from 1 to 10, I have to grade Shambhu. He may be a useless donkey who is not present over here after asking such an important question. But still, if I have to be honest, to rank you people from 1 to 10, no one even comes at number 2. From 1 to 10 is Shambhu. And 11th is Piyush. I know that because I have given it to Piyush. He doesn't talk about it. He does not. After his enlightenment, we heard how does he sound. Before that, you can ask Sonali Sayukta. No one heard him speaking a word. The only person who would do talking for him was Babita left. Babita came. What is happening, Babita? Maybe you are not fit to listen to this. So maybe, only because of Sweetie. Sweetie was the only way. Sweetie would say, you do this for Piyush. Piyush will like to know this. Piyush would never speak one word. After his enlightenment, he started speaking. But once if you hear him, you will understand that in enlightenment, he is much farther. He is much ahead. But I cannot say any close to Shambhu. He comes at the 11th rank, the 11th place. Shambhu is at number 1. तो हिंदी में बता देता हूँ एकता के लिए कि क्या प्रश्न था. बबीता चली गई तो उसका प्रश्न भी मेरे दिमाग से चला गया. तो प्रश्न का जवाब मैंने हिंदी में दिया था कि मोक्ष होता है, उनको जन्म लेना नहीं लेना उनकी मर्जी के हिसाब से होता है, नहीं उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है. जन्म तो लेना ही पड़ता है. कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, ये उनकी मर्जी के हिसाब से होता है. तो वो अपने गुरु के पीछे जन्म लेते हैं या अपने आचार्य के पीछे जन्म लेते हैं, क्योंकि पता है कि गर्भ में प्रवेश हुआ तो मोक्ष भूल गए. योनि में जैसे ही प्रवेश होता है आदमी अपना मोक्ष भूल जाता है. भले पुरुष बन के या स्त्री बन के यौन संबंध करे या बच्चा बन के पैदा हो जाए, योनि में गर्भ में प्रवेश हुआ तो भूल गए मोक्ष. तो इस वजह से आचार्य के पीछे होता है. और बहुत समय ऐसा होता है कि आचार्य के आसपास में पैदा नहीं होता है, कहीं दूर होता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, पास में पैदा होने वाले का इतना वो नहीं रहता. और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर पैदा होना है तो देख के होना, जहाँ मैं हो रहा हूँ या मैं नहीं हो रहा हूँ, तो जहाँ शंभू हो रहा है तो वहां हो जाना. तो वहां मैं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा तो शंभू तुमको आगे ले जा सकता है. क्योंकि अगर जिन जिन को मोक्ष मिला है उनको अगर मुझे एक श्रोणी में रखना हो, एक अंक में रखना हो, तो 1 से लेकर 10 तक तो किसी का नंबर नहीं आता. 1 से लेकर 10 तक शंभू ही है और 11वें नंबर पे पीयूष. तो पीयूष तुम सबसे भले बोलता नहीं, उसको कभी तुमने सुना नहीं है. आज तक हम मोक्ष नहीं हुआ था तब तक उसका आवाज कैसा लगता है वो मुझे भी नहीं पता था. मोक्ष के बाद थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है वो, लेकिन उससे बात करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वो आपको काफी आगे है मोक्ष में. और एक बार पूना जाते हुए उसको मैं मोक्ष के आगे ले गया बस में बिठा कर. पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो शंभू के करीब है, क्योंकि 1 से 10 में तो शंभू ही है, 11वें तो वो आता. तो पीयूष या शंभू को पकड़ के चलना, जहाँ पीयूष हो या जहाँ शंभू हो वहां जन्म हुआ, वो अगले जन्म में भी वो तुमको पार कर देंगे, वो पक्की बात है. हाँ, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारा उद्यम होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए उसमें. ऐसा नहीं कि 68 लोग क्लास में हैं और अभी क्लास में कितने हैं, आ जा रहे हैं 24. तो वैसा नहीं, पूरी उद्यम पूरी लगन से आना.
कोई और प्रश्न है? गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव अभी जब आप बता रहे थे कि शिव और बीच में जय शक्ति का वो हो रहा है, तब से मेरे बॉडी में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही है वो और होने वाला है। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ में है दर्द हल्का है, लेकिन बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही है और सांस भी हो रही है, धड़कन बहुत बहुत अच्छा तेज हो है, रही ठीक है। फिर अगला कुछ पूछना? है। नहीं, वो अचानक से हो रहा था, मैं कहा आपको क्योंकि वो पूछूं। वाइब्रेशन की मजा लो। हाँ? चलो, एनीथिंग एल्स? So you want to do the 5th class today? तो पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। Ether sky was produced from the face of Ishan, the 5th face, and from it was produced the power of Sandhyatitha, one who is beyond dawn and dusk, beyond enlightenment. Now what we spoke about. From it was produced the multicolored cloud called Sumana, and from its dung was produced Raksha, literally meaning protection, shield. तो छठा सूत्र ये कहता है कि आकाश तत्व से भगवान का ईशान मुख से आकाश तत्व आया और आकाश तत्व से संध्यातीत आई। संध्यातीत मतलब संध्या के अतीत, संध्या के परे, संध्या के ऊपर या मोक्ष के परे। संध्या मतलब मोक्ष, ईश्वर जीव और शिव का मिलन मतलब संध्या, मतलब मोक्ष। और उसके परे जो आया, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उससे एक गाय आई विभिन्न रंगों की और उसका नाम था सुमना। उसके गोबर से जो विभूति बनी उसका नाम है रक्षा। रक्षा मतलब हमारी सुरक्षा। आगे अंग्रेजी में बोलता हूं। We saw that first Lord Kalagni, Rudra, presented that he wasn't interested in teaching, but actually he was interested in teaching due to the right question, but he replied in a way that would interest the disciple. After answering the question about self-realization, he starts picking up the answers from his previous questions, seeing his interest. सबसे पहले जो है भुशुंडी, काकभुशुंडी ने जो प्रश्न पूछा वो था भोग का, कि मुझे भस्म के बारे में बताओ, मुझे रुद्राक्ष के बारे में बताओ। तो कालाग्नि ने कहा चल उसके लिए तू कोई भी मेंटोर को पकड़, कोई भी आचार्य को पकड़, वो तू गुरुदेव के पास नहीं आ सकता ये फालतू के सवाल पूछने को। और फिर उसने कहा कि अरे गलती हो गई, मुझे मोक्ष के बारे में बताओ। तो मोक्ष के बारे में बताते बताते अभी वो गोबर के बारे में, भस्म के बारे में बता रहे, फिर धीरे धीरे रुद्राक्ष के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो सही प्रश्न के लिए इंतजार कर रहे थे और इसका इंटरेस्ट कितना है जानने में, उसके लिए इंतजार कर रहे थे। कोई भी चीज से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी पूर्ण प्राप्त हो तब। भस्म के बारे में पूर्ण तरीके से जान लो तो मोक्ष हो जाएगा, सांस के बारे में पूर्ण तरीके से जान लो तो मोक्ष हो जाएगा, वासना के बारे में पूर्ण तरीके से जान लो तो मोक्ष हो जाएगा, रुद्राक्ष के बारे में पूर्ण तरीके से जान लो तो मोक्ष हो जाएगा। कोई भी एक चीज के बारे में पूर्ण तरीके से जान लो, उसमें स्वर अर्थात श्वास के बारे में पूर्ण तरीके से जाना कि ना जाना, उसको जानने की कोशिश करने पे भी मोक्ष हो ही जाता है। वैसा ही भस्म के बारे में भी है। So whatever you learn, if you learn it complete, you will be enlightened. Whether it is Bhasma, Rudraksh, or your breath, Swar. But Swar is such a mythical subject that even if you approach it even half the way, you have the chances of being enlightened. So, ether element is only self-realization. People who have done Swar, they know this. And it was produced from the topmost face, Ishan face of Lord Shiva, which represents the Sushumna Nadi. I've told you the two faces representing Ida Nadi and the two faces representing Pingala Nadi. Ishan is representing Sushumna Nadi. तो जो ऊपर का चेहरा है भगवान शिव का, वो मोक्ष प्रदान करने वाला है क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव के 5 मुख है,
बाईं ओर के दो मुख ईड़ा नाड़ी को दर्शाते हैं, दाहिनी ओर के दो मुख जो है वो पिंगला नाड़ी को दर्शाते हैं, और ऊपर का जो पांचवा मुख है ईशान, वो सुषुम्ना नाड़ी अर्थात आकाश तत्व अर्थात मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मीनिंग ऑफ संध्या मीन्स when two meet, but two never meet. One eats up the other. When the day goes to meet the night, that is called Sandhya. Evening. Evening is Sandhya. When the night comes to meet the day, it is called evening. Dawn or dusk, that is Sandhya. Dawn and dusk is Sandhya. Where they meet, but they never meet even after meeting. When the night comes to meet the day, it eats up the day and turns it into night. When the day goes to meet the night, it eats up the night and turns it into a day. संध्या का अर्थ है मिलन, संधि। दिन जब रात को मिलने जाता है उसको संध्या कहते हैं, पर वो रात को जीवित नहीं छोड़ता, उठा जाता है रात को और दिन में परिवर्तित कर देता है, और रात जब दिन को मिलने आती है तब दिन को खा जाती है और रात में परिवर्तित कर देती है। तो मिलन जो होता है उसको संध्या कहते हैं, लेकिन मिलन कभी होता ही नहीं, क्योंकि दो लोग जब मिलते हैं तो दूसरा एक को खा जाता है। इसीलिए जब गुरु और शिष्य मिलते हैं, अभी तुम लोग मिल रहे हो मुझे, इतने सारे लोग इस क्लास में हैं, लेकिन उपस्थिति एक ही की जो है मौजूद है या महसूस होती है, क्योंकि बाकी सबको गुरु की आभा के भीतर आ जाती है। सबकी आभा, सब एक छत्र के अंदर आ जाते हैं, अस्तित्व एक ही का नजर आता है। आप जंगल में शेर को मिलने जाओ तो शेर आपको खा जाएगा, आपका खून, आपका मांस, आपकी हड्डी, वो सब शेर का खून, शेर का मांस, शेर की हड्डी बन जाएगा। So Sandhya is when you go to meet a lion in the jungle, the lion will eat you up, and your body, your skin, your muscles, your veins, your blood, your bones will become the body, muscle, veins, blood and bones of the lion. You will become a lion. If you come back home, you will say, I am the lion. In the same way, when you get enlightened, when you come back home, you say, I am God. I am not the same person who went to meet God. The God has written you are. ऐसा ही मोक्ष में होता है। आप मोक्ष के पास जाते हो और जब वापस आते हो तब आप ये नहीं कहते कि मुझे वाइब्रेशन हो रहा है। ईश्वर तुमको खा जाता है। तुम कहते हो शिवो हम ही शिव है। तुम कहते हो हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। वो गया पुराना जो था उसको खा गया भगवान, और वो भगवान वापस आया है। इसको संध्या कहते हैं कि दो मिलते हैं तब एक रहता है, और संध्यातीत में एक भी नहीं रहता। This is Sandhya. When two people meet, only one remains. But Sandhyatit is when even one will not remain. Even that one will vanish. Understood? समझ में आया? इसको संध्यातीत कहते हैं। संध्यातीत समझ में आया? Do you have any questions on this, or I will move ahead? Guruji, I have one question. So if like after self-realization we say that I am only God, then तो मैं ही माँ हूँ, तो मैं like why should I wait for Ma's decision on everything then? Because waiting is also Ma. Okay. And everything is Ma. When you realize that you are Ma and you think that others all are C, you know the meaning of C? No. Yeah, I know. Yeah. Yeah. So then you have not received enlightenment. Yeah. Then waiting, then sorrow, then everything else, even your problems are Ma. Only and only then you are enlightened. Okay. Okay. I understand. Enlightenment can not be in parts, it has to be complete. Right. Okay. When you realize that I am God and others are also God, an enlightened person cannot complain that I am enlightened and people are not touching my feet. I am God.
Idiot, even they are God. If you don't see that God in them, you cannot see the God within you. You are lying. You are not enlightened. Yeah, true. Got it? Yeah. And that problem and that waiting is as much Ma as what you are. It is not a lesser Ma than you. Okay. Yeah, that's a new way of looking at it. Yeah. Not new way. It is the Existing only way. way. Yeah. Yeah. Thank you, हाँ, Guru. समझ में आया? हिंदी में समझाओ. तो प्रश्न ये था कि अगर मैं ही माँ हूँ, मतलब जब मोक्ष प्राप्त होता है तो हमें ये रियलाइज होता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही माँ हूँ. तो अगर मैं ही माँ हूँ या फिर मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो मैं माँ से क्यों किसी चीज के लिए परमिशन लूं? मैं जो डिसीजन लेना चाहती हूँ खुद से मैंने खुद से लेना चाहिए, उसके डिसीजन का क्यों वेट करूं? तो आंसर ये है कि मतलब जो वेट करना है, जो माँ हमें रुकने के लिए बोल रही है, वो या फिर जो प्रॉब्लम्स वो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, वो भी एक तरह से माँ ही है. और अगर हम ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि मैं एनलाइटनमेंट हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो सिर्फ मैं ही माँ हूँ और दूसरे नहीं है, तो वो गलत है. फिर वो मोक्ष प्राप्ति है हुई नहीं. Sorry, Guruji. She sings so well. But when she is singing, when you are speaking, she suddenly becomes irritating. Yes. Huh? So the cow is named Sumana. Sumana means good mind, or the subtle mind, or the well-disposed mind, which is ready to be turned into a ash, which is ready to move beyond enlightenment. तो सुमना क्या है? सुमना वो मन है जो मन है, सुंदर मन है और एकदम सरल मन. सरल मन भस्म बनने को तैयार है, मिटने को तैयार है. तुम टेढ़े इंसान से करो, तुम होशियार इंसान से करो, क्या तुम मिटने को तैयार हो? कहेगा तुम पागल हो, तुम जाओ, तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा भगवान भी नहीं चाहिए, तुम्हारी विभूति भी नहीं चाहिए, तुम्हारा कालाग्नि रुद्र भी नहीं चाहिए और तुम्हारा भीषुंडी भी नहीं चाहिए, भागो, आना मत दूसरी बार इधर. तो मोक्ष के आगे जाने के लिए जो चीज जरूरी है वो है सुमना, एक सरल मन जिसको जैसे दिखाओ वैसे जाए. गुजरातियों में कहते हैं दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए. अब गाय तो वहीं जाती है दोरे त्या जाए, पर दिकरी नहीं जाती. तकलीफ ये है. तो ये कहावत बंद हो गई है. इन गुजराती it is said that a cow and a girl will go where you direct them to go. That cow is Sumana. It goes where you direct it to go. But nowadays, the daughter, you can't direct her to go. A person whose mind has become like the cow's mind, that person is ready to go beyond enlightenment. There is a story, I don't know, we are late today. I will see if we have time, please remind me a little bit more. If you want to hear the story, we will tell you. That story is a very beautiful, it's an Upanishad story. A whole Upanishad is on that story and it's very close to my heart. Anyways, if we have time, we will. एक कहानी है, उपनिषद ही है पूरा एक कहानी, तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उस वक्त वहां था. तो कहानी का एक पात्र मैं भी हूँ, इसलिए ये कहानी मेरे से बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है. वो जो कहानी का नायक है श्वेत केतु, मैं उसका बहुत ही करीबी था. तो इस वजह से वो गाय की ही है, लेकिन समय रहेगा तो आज थोड़ा सा
तुम लोगों को भी देरी हो रही होगी। तो विभूति, भस्म, वशिष्ठा, शरम और रक्षा, ये 5 प्रकार के भस्म है, राख है, पवित्र राख है। और ये सब जो है ये नाम अद्भुत नाम है। विभूति, क्योंकि विभूति अद्भुत धन प्राप्त कराती है। भूति मतलब भुगतान, पैसा। विभूति मतलब बहुत सारा भुगतान, बहुत सारा पैसा। तो विभूति नाम का भस्म जो है, जो गोल्डन गाय से, पृथ्वी तत्व की गाय से निकलता है, वो पैसा देता है। और भस्म, क्योंकि वो तुम्हारे पापों को भस्म कर देता है। और वशिष्ठ मतलब वो चमकीला बनाता है तुमको, तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारे जीवन को, तुमको यश देता है, फेम देता है। फेम अगर चाहिए तो वशिष्ठ नाम की भस्म जो काली गाय से मिलती है, बराबर है ना, उसको लगानी चाहिए। और फिर उसको बर्तन घिसने में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, काली गाय की भस्म, उससे बर्तन चमकते हैं। और शर, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है। हाँ, शर क्योंकि वो आपको खतरों से बचाती है। और रक्षा नाम की भस्म ये है क्योंकि वो ढाल का काम करती है, भूत प्रेत पिशाच डाकिन शाकिन से आपको बचाती है ना। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश। विभूति, वशिष्ठ, भस्म एंड शर एंड रक्षा आर द 5 नेम्स, and these 5 names are for 5 colored cows and they have their own benefit. Vibhuti means that which will give you a lot of wealth, and bhasma means it will burn off all your sins, and vashishta means it will give you fame, it will make you shine, it will give you a glow on your face. Every one of you, after who have started listening to the videos of Brihad Javalu Upanishad, do you see that there is a glow on your face? Everyone check. You will see a glow on your face. There is a different glow on your face. Everyone. That's helping you. This, just listening to this knowledge is giving a glow on your face. It will give you fame, money. Shudder, because it is protecting you. It is destroying your enemies, diseases and everything. And Raksha means it is creating a protection shield around you. So these are all the names, and Raksha means it is also protecting you from various demons and spirits and Dakin, Shakin and everything. Okay, so do you have any questions on this? कोई प्रश्न है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमें भस्म कब लगानी चाहिए और क्या वो त्रिपुंड के रूप में लगानी चाहिए या बिंदी के रूप में भी लगा सकते हैं? बिंदी के रूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन त्रिपुंडी के रूप में लगाने से ज्यादा लाभ है। और तुम क्यों आ जाओ कर रहे हो क्लास के अंदर? गुरुदेव, यहाँ नेटवर्क की बहुत, ये पहली बार नहीं हो रहा है तुम्हारा, पहले भी हुआ है। जी गुरुदेव, नेटवर्क की प्रॉब्लम अपने आप को आता जाता रहता है। तो वाईफाई पे चले जाओ। यहाँ पे दिक्कत है गुरुदेव, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए। नहीं तो वाईफाई लगा के वाईफाई पे बैठो ना, कहीं वाईफाई हो तो। सब जगह भी गवर्नमेंट ने भी बहुत फ्री वाईफाई रखे हैं। हम अमेरिका थोड़ी है, हम एडवांस कंट्री है इंडिया। हाँ, फ्री वाईफाई सब जगह है। जियो भी फ्री वाईफाई, फ्री नेटवर्क, फ्री डेटा दे रहा है। और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? गुरुदेव, वो जो आप शंभू गुरुजी का जो प्रश्न था कि वाइब्रेशन और स्टिलनेस वाला, क्या वो दोनों मतलब अगर दो क्वेश्चन है गुरुदेव कि जब हम स्टिलनेस करते हैं तभी हमको गॉड की वाइब्रेशन समझ में आती है, या हम मतलब स्टिलनेस के बाद ही तो हमें गॉड समझ में आता है ना, जब हम रुकते हैं तो वही तो वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन से ही स्टिलनेस है। जब एक लेवल पे वाइब्रेशन का तभी स्टिलनेस है। What he says is also very beautiful. It is something to be noted by every person who has received enlightenment, that when we are still, we experience vibration, and if we are dancing, if we are spinning, if we are vibrating, if you shake very hard from your whole body, you will feel stillness in the center of your existence. So yes, that is possible. That is what we think, that vibration and stillness, they don't
oppose each other but they complement each other. आपका कहना यही है ना कि स्थिरता और ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया, पर उसका प्रश्न ही कुछ अलग है। गुरुदेव उसको भी समझा दीजिएगा। और प्रश्न एक है गुरुदेव, कुछ योगी के बारे में हमने पढ़ा या सुना है वो बैठ के शरीर छोड़ते हैं, कुछ योगी को हमने देखा वो लेट के शरीर छोड़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे संत हैं, फेमस संत हैं, वो उन्होंने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा है। तो क्या इससे उनके एनलाइटमेंट में कोई फर्क पड़ता है, या कहते हैं जो लोग कहते हैं बैठ वाला योगी जो छोड़ा वही महायोगी है, ऐसा कुछ है? ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जो एनलाइटेंड है तो एनलाइटेंड, उसको क्या फर्क कि लेट के छोड़े या बैठ के छोड़े? जब मैं शरीर छोड़ूंगा उसके बाद पूछ लेना। तो मैंने 2 अद्भुत तांत्रिकों को देखा है, योगियों को नहीं। उन दोनों ने बैठ के छोड़ा था और दोनों ऐसी स्थिति में थे कि बैठ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जब अंत समय आया उन्होंने शिष्य को कहा कि बैठाओ। एक भगवान रामकृष्ण परमहंस थे और तुम भी वहीं पे थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा, और तुमको पता है कि उन्होंने बैठ के छोड़ा, बराबर है जी। और एक हमारे बाबा थे, वो भी बैठने की स्थिति में नहीं थे। उनके पास जो शिष्य लेटे हुए थे उनको उठाया और कहा बैठाओ, पात्र किया, तर्पण किया। फिर महात्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी जो मृत्यु की देवी भी है उसका आह्वान किया आंखों में पानी से कि मैं बचपन से तुझे बुला रहा हूँ, तू कभी नहीं आई, आ मुझे अपनी गोद में बैठा और ले जा, और फिर जीव छोड़ा। वो आखिरी शब्द थे उनके। तो उनके अनुभव के आधार पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब मैं तय करूंगा कि बैठ के अच्छा है, कि लेट के अच्छा है, कि शीर्षासन करके अच्छा है, कि दौड़ते हुए अच्छा है, कि खड़े होके अच्छा है। क्योंकि बुद्ध जो बहुत बहुत उच्च कोटि के मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उन्होंने लेट के छोड़ा था। और महावीर, अगर मेरे मन से पूछो कि किसका मोक्ष बड़ा, बुद्ध का कि महावीर का, तो मैं कहूंगा महावीर का। तो महावीर ने शायद टॉयलेट करते हुए छोड़ा था। जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना, जी जी। वैसे हजरत मोहम्मद ने घोड़े की तरह, जब हम चलते हैं ना बच्चे होते तब घुटने पे कैसे चलते हैं, जी उस प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया और लेटे हुए प्राण छोड़े थे। जी। और खड़े नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ पैसे तेरे हाथ में बच गए हैं अपनी बीवी को, जिससे उन्होंने शादी की थी जब वो 6 महीने की थी, और उसके साथ शरीर संबंध बनाया था जब वो 9 साल की थी। वो पत्नी उनके साथ थी, उनकी मृत्यु जब हो रही थी, तो उन्होंने उस पत्नी को कहा कि तूने पैसे बचा के रखे हैं। उनका नियम था कि आज जितने पैसे कमाए हैं उसको आज ही खर्च करने हैं या दान दे देना। तो अब द्वार पे कोई आया है मांगने वाला, उसको दे दे। और राजा होने के बावजूद वो झोपड़े में रहते थे, और उन्होंने वो कहा मेरे प्राण नहीं छूट रहे, मुझे जाना है, मुझे मरना है, लेकिन कुछ पैसे बच गए हैं, इसके लिए मैं मर नहीं पा रहा हूँ, तू दे दे। तो सिक्का दे के अंदर आए, तब तक प्राण छूट गए थे हजरत मोहम्मद के, और वो लेटे हुए थे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो मुझे प्रिय थे उन्होंने बैठ के छोड़ा, तो बैठ के छोड़ना उत्तम होता है, क्योंकि उनसे बहुत आगे के जो लोग हैं, भगवान बुद्ध, हजरत मोहम्मद, क्योंकि उनको पढ़ा है मैंने, मुझे पता है उनकी गति क्या है। उन्होंने लेट के छोड़ा तो कुछ तो बात होगी कि उन्होंने लेट के छोड़ा। तो जब मैं छोड़ूंगा और मैं मृत्यु देवी का आह्वान करूंगा, तब मैं उसी से पूछ लूंगा कि कैसे छोड़ना सही है। अभी पूछूंगा तो वो भी मुझे वही जवाब देगी जो मैं तुमको दे रहा हूँ कि अभी तुमको छोड़ना है तो अभी बताता। तो जब मैं छोड़ने वाला हूँगा तब तुम देख लेना कि कैसे मैंने छोड़ा, और वही उत्तम तरीका होगा।
वही मेरा जवाब होगा। या पीयूष से पूछ लेना, हम सब जाएंगे, हमारे पीछे जो मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग सब चले जाएंगे ना, तो सबसे आखिर तक जो जीने वाला है वो पीयूष है। तो उससे पूछ लेना कि किसने कैसे प्राण छोड़े। शंभू गुरु जी ने, हितेश गुरु जी ने, संयुक्ता ने, सोनाली ने, सरिता ने, राधिका ने, जिन जिन को मोक्ष मिला वो कौन से थे, कौन शीर्षासन कर रहा था, कौन लेटा था, कौन तैर रहा था, कौन दौड़ रहा था। फिर हिसाब लगा लेना तुमको क्या करना है, कैसे छोड़ना है। आपके चरणों में छोड़ेंगे और कहाँ जाएंगे, आप जानिए। बस तो बस वही उत्तम है, उससे उत्तम क्या होगा। गुरुदेव, हाँ कुछ पूछना था आपसे। हाँ हाँ। ये शीर्षासन और लेट के एक मतलब बैठ के अगर प्राण छोड़ने, उससे उसका कनेक्शन कुंडलिनी या चक्रों के आधार पर लिया देखो, जाएगा जब क्या? तुम एक स्थिति में चले जाते हो ना संयुक्ता, तुम एक स्थिति को पार कर लेते हो। When you cross one level or when you are totally surrendered, it doesn't matter you are lying down or you are sitting. You want to move the kundalini will move. You do aura cleansing of a person, you make that person lie down. You go Muladhara Chakra, Swadhisthana, Manipur, Anahat. You think you are not activating the kundalini of that person? तुम aura cleansing करते हो, इंसान को लेटा देते हो, लेट जा, और तुम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर ऊपर की तरफ चक्र सफा करते हो, तो नीचे से ऊपर क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको भी पता है कि तुम उसकी कुंडलिनी को ऊपर खींच रहे हो। तो एक स्थिति तुमने प्राप्त कर ली, या जब तुम गुरु की वाणी से ध्यान कर रहे हो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लेटे हो, तुम शीर्षासन कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम कुंडलिनी के गुलाम नहीं हो। कुंडलिनी तुम्हारी गुलाम अब हो चुकी है। तुम कुंडलिनी को बोलो मैं शीर्षासन कर रही हूँ, जाग, तो कुंडलिनी को जागना पड़ेगा। तुम कुंडलिनी को बोलोगे कि मैं लेटी हुई हूँ, खर्राटे खा रही हूँ, सोई हुई हूँ, लेकिन तेरे को जागना पड़ेगा। तू सहस्त्रार पे जा, तो कुंडलिनी को सहस्त्रार पे जाना पड़ेगा। वो कुंडलिनी, फिर हजरत मोहम्मद ने लेट के प्राण छोड़े, उसका मतलब ये नहीं कि मूलाधार चक्र से छोड़े। भगवान बुद्ध ने लेटकर प्राण छोड़े, तो उसका मतलब ये नहीं कि मूलाधार से छोड़े। और मूलाधार से छोड़ा भी होगा तो उनकी मर्जी, उनके लिए वही उत्तम होगा, तो उन्होंने जान के किया। और अगर उनको लेटे लेटे सहस्त्रार से प्राण छोड़ने होते, तो उन्होंने लेटे लेटे सहस्त्रार से प्राण छोड़े होंगे, और होगे भी। मेरे दादाजी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। उनकी जब मृत्यु हुई, वो लेटे हुए थे और उनका सहस्त्रार फटा और यहाँ से खून का फव्वारा उड़ा और उन्होंने प्राण छोड़ा। मतलब ये तो नहीं हुआ कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर कहाँ से भी प्राण गया। उनका प्राण तो सहस्त्रार से गया, क्योंकि ये फट गया था और खून का फव्वारा उड़ा था और सबने देखा, और उन्होंने प्राण छोड़े। तो कुंडलिनी, जब वो वैसा व्यक्ति जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, उसकी भी सहस्त्रार से लेटे लेटे छूट सकती है, तो तुम्हारी तो दासी है। तुम आज ही ट्राई करना, तुम लेट जाओ और तुम कुंडलिनी को बोलो चल मणिपुर चक्र पे आ जा, फिर तुम कुंडलिनी को बोलो अनाहत पे जा, फिर तुम उसको बोलो सहस्त्रार पे जा, फिर तुम बोलो चलो फिर से अनाहत पे जा। वो कुंडलिनी तुम्हारे मर्जी की मालिक है, तुम उसके गुलाम नहीं, वो तुम्हारी गुलाम है। वो दिन गए जब तुम कुंडलिनी के गुलाम थे। अब दिन ऐसे आए हैं कि कुंडलिनी तुम्हारी गुलाम है, कुंडलिनी तुम पे निर्भर है, तुम कुंडलिनी पे निर्भर नहीं हो। समझे? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैठे हो कि तुम लेटे हो। अगर ये होता तो फिर तो मैं सीधा सीधा जवाब दे देता कि बैठना ही सही है, इतनी बात घुमाता नहीं। थैंक यू गुरुदेव। If that would have been the question, I would have said that sitting is better. Everyone knows that Kundalini is of the nature of fire. Fire can only go up. It's all right. Kundalini can go east, west, north, south, anywhere. You have to tell the Kundalini, here you go, the Kundalini will go there. The Kundalini is not going to govern you. You are going to govern the Kundalini. The Kundalini is not going to direct you. You will be directing the Kundalini. Got it? हाँ, सही था? थैंक यू गुरुदेव। हाँ।
Okay. Guruji, So it's all, yeah, tell me. no, it's okay. If the time is up, I'll probably ask on the time. That's fine. Tell me. So, for like, since you say that Kundalini is our slave, तो कुंडलिनी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तंत्र है कि just the willpower, or Do you is know it? swimming? Hmm? Do you know swimming? Yes. What is the best way of swimming? Free stroke, frog style, laps, butterfly, what backstroke? Which is the best method of swimming? So free for frog style. Actually, whatever you learn the first time, that is the best style. वो तो उसी की आदत पड़ जाती है. Every person is different. Every person has different styles. Yeah. Yeah. So some people tantra is good. For some people yoga is good. For some people meditation. See, there are 5 types of yoga. 5 प्रकार के योग है. कुंडलिनी को काबू करने के लिए कौन सा उत्तम है वो आप पे निर्भर है. हर व्यक्ति अलग है. हर व्यक्ति का एक मार्ग हो सकता है कि राजयोग जिसको ध्यान का योग कहते हैं. One is Raj Yoga, which is the yoga of meditation. Karma Yoga, which is of social service or working, physical working. कर्म योग, कर्म करके मोक्ष की ओर जाना, कुंडलिनी को जागृत करना. तीसरा है भक्ति योग, जो सर्वोत्तम सभी लोग मानते हैं इसको. थर्ड इज डिवोशन योगा. Everyone is propagating devotion. Without devotion no yoga works. Fourth is hati yoga, which is tantra. चौथा हठ योग है जो तंत्र का मार्ग ज्यादातर माना जाता है. एंड फिफ्थ इज, पांचवा कौन सा है? Which one is the fifth? राजयोग गुरुदेव. ज्ञान योग. कौन सा बताया हिमांशु? राजयोग. Yeah, that he told. राजयोग. That's the first. राजयोग तो पहले ही बताया. ज्ञान योग, नॉलेज, अभी जो तुम प्राप्त कर रहे हो ज्ञान, दिस नॉलेज दैट यू आर, विजडम दैट यू आर गेटिंग. Why wisdom? If you get self-realization, that is Jnana Yoga. So this 5 types of yoga. These are the main 5 branches, and then there are sub branches. So you can go by any, whichever suits you. Okay. So अभी 11:15 हुए. That is 11:45 in India right now in the night. You want to hear the story of Shwetaketu, or you want to call it a day? Shwetaketu. So there was a guru. His name was Udalak. He was a very honest and one of the biggest guru of that time. एक गुरु थे, उनका नाम था उदालक. वो सबसे ज्ञानी और सबसे बड़े गुरु होने के साथ साथ और एक उनकी खासियत थी कि बहुत ईमानदार थे वो. और वो गुरु थे बड़े बड़े महारथियों के, जैसे कि अष्टवक्र का आप सबने नाम सुना होगा. यज्ञवल्क्य का आपने नाम सुना होगा. वो स्वयं, उनको मुक्ति नहीं मिली थी, लेकिन जो उनके शिष्य थे उसमें से काफी शिष्यों को मुक्ति मिली थी और उन्होंने जगत में प्रसिद्धि पाई थी. ये गुरु निंदा के भी पात्र बने थे क्योंकि उन्होंने स्त्री और पुरुष को समान ज्ञान दिया था, जो उस समय पे चलता था, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने उनका विरोध किया था. उनके खुद के शिष्यों ने उनको विवाद में हराया था और बार बार अपमानित हुए थे. This Guru Udalak, he was very honest, wasn't enlightened, but his students, many students became enlightened, though he wasn't enlightened, because he was very honest. He would give 100% what he knew to his disciples when the time would come. He would give equally to males and females, so he got a lot of objections from all the quarters, but he continued to be what he was.
One day a son was born to him. His name was Shwetketu. And when Udalak looked at the sun, and the sun opened his eyes, Udalak knew that the purpose of his life has been solved by giving birth to this child, because none of his child was even enlightened. His daughter's son, Ashtavakra, was enlightened, but none of his own child was ever enlightened. None of his son, none of his daughters. So after a long time, a child was born, and taking the child in the hand, looking at the aura, looking at the eyes of the child, he knew that the purpose of my life is fulfilled. This child can receive self-realization, and he will be such a huge self-realized saint that he will be mentioned in the Vedas, and his name will be living forever. तो उस बच्चे को हाथ में, जब उसको एक बच्चा हुआ, तब उस बच्चे को हाथ में लिया और उस बच्चे ने आंखें खोली, तब श्वेतकेतु के हृदय में, उदालक के हृदय में एक अजीब शांति, आनंद का अनुभव हुआ कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। ये बच्चा, मेरे कई शिष्यों को मोक्ष मिला है, पर मेरे एक भी बेटे या एक भी बेटी को मोक्ष नहीं मिला है। इस बेटे को मोक्ष मिलेगा, और इस प्रकार का मोक्ष मिलेगा कि ये इतिहास में, वेदों में जीवित रहेगा हमेशा के लिए। तो उदालक ने कहा कि पहले इसको देखते कि ये कैसा है, तो उसे अपने करीब हमेशा रखने लगा। Udalak wanted to first test that how the child is coming up. So he always kept him very close to him. One day the child was playing around Udalak, and suddenly he asked a question to Udalak which shook the existence of Udalak. He said, "Father, where have I come from?" He said, "From me." He said, "Okay, where have you come from?" Udalak slowly started to realize where it is going. He said, "From grandfather." He said, "Okay, where did grandfather come from?" He said, "Great grandfather." He said, "Actually, everyone came from their father. Where did the first father come from?" एक दिन खेलते खेलते उस बच्चे ने उदालक से ऐसा सवाल पूछ लिया कि उदालक का जीवन पूरा हिल गया, उसके शांतिमय जीवन में एक भूचाल आ गया। उस बच्चे ने खेलते खेलते एक मासूम सा सवाल पूछ लिया, "बाबा, मैं कहाँ से आया?" कहा, "मुझसे आया।" कहा, "आप कहाँ से आए?" तब उदालक को पता चला कि जहां से पिता के घर रोशनी आई, कि ये पता चल गया उसको कि ये प्रश्न कहाँ जाने वाला है। उसने कहा, "दादाजी से आया।" बोला, "अच्छा, दादाजी कहाँ से आए?" वो परदादा से। "अच्छा, चलो, सबके पिता कहाँ से आए?" डर गया, बोला, "इसको झूठ नहीं बोल सकता मैं, जैसे दूसरे बच्चों को बोला जाता है।" कहा, "तू जो पीपल के पेड़ के नीचे खेलता है ना, उसके नीचे से एक फल लेकर आ, तब मैं तेरे को जवाब दूंगा कि सबके पिता कहाँ से आए।" वो दौड़ता हुआ गया, फल लेकर आया, कहा, "ये फल को तोड़।" फल को तोड़ा, उसके अंदर क्या है? तो बोला, "बीज है।" बीज को तोड़, बीज को तोड़ा, उसके अंदर क्या है? बोला, "कुछ भी नहीं।" बोला, "ये कुछ भी नहीं है तो ये पीपल का पेड़ और अनंत कोटि पेड़ आए हैं, और यही कुछ नहीं से मेरे पिता, सबके पिता, और तू भी आया है।" उदालक को लगा बात खत्म हुई, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई थी। अंग्रेजी में बताने के बाद फिर से शुरू करेंगे। So Udalak said that it's not good to give any kind of answer to the kid that we give generally to the kid. This is a brilliant kid. I have to give him the right answer. So he said, "I will only give you the answer after you run, go to that peepal tree which you play under you, and you get me one fruit of it."
He ran because he wanted the answer. He ran with all his life, brought one fruit and gave it in the hand of Udalak and said, now reply. He said, break the fruit. He broke the fruit. He said, what is inside? He said, the seed. He said, break one seed. He took the seed, broke it with his nail, and he said, what is inside? He said, nothing. He said, from this nothing has come everything. Millions of plants and millions of trees. And from this nothing have come everyone. Everyone's father and also you. Udalak thought it is over, but it was far than over. He said, then if that nothingness has created everything, then where is it? So he said that it is in everyone. Udalak said it is in every one of us. So he said that why can't we see it? So Udalak put another question to him. He said, I want to drink milk. Go to your mother and get some milk as well as some sugar with you separately. Only then I can give you the answer. बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर श्वेत केतु था, वो चुप नहीं बैठने वाला था. उसने कहा कि अगर ये कुछ नहीं में से हम सब आए हैं, तो ये कुछ नहीं है किधर, दिखता क्यों नहीं? बोला हम सबके भीतर. तो बोलता भीतर है तो दिखता क्यों नहीं? तो क्या इस प्रश्न का तभी उत्तर दूंगा जब अपनी माँ के पास से दूध और थोड़ी मिश्री ले आ, अलग अलग ले आना, मिलाना मत. तो दौड़ता गया, बोला माँ जल्दी दूध और मिश्री दे, बाबा को चाहिए और जल्दी दे, मेरे को और भी काम है. बोला तू इतना छोटा, तुझे क्या काम? बोला तुझे नहीं पता चलेगा, तू दे दे. दूध मिश्री दौड़ कर लेकर आया. पिता ने कहा दूध को चख. दूध को चखा. फिर बोला अभी मिश्री डाल, उसमें मिश्री घोल दे. मिश्री डाल दी, मिश्री घोल दी. बोला अब दूध को चख. बोला क्या फर्क है? बोला अभी मीठा है. तो बोलता क्यों मीठा है? बोला बाबा सही सीधी बात है, मैंने मिश्री डाली, मिश्री घोल दी अंदर. तो बोलता है तो फिर बता मुझे मिश्री कहाँ है, मैं तो नहीं मान सकता. बोला मानो नहीं तो चख के देख लो ये दूध पात्र में से, आप चखो ये मीठा है. तो कहा जैसे दूध में मिश्री में नजर नहीं आती है लेकिन उसका स्वाद लिया जा सकता है, वैसे ही वो कुछ नहीं नजर नहीं आता है लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, और उस अनुभव को समाधि कहते हैं. और वो अनुभव हमें अगर हमेशा का हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं. So he said, go run, get milk and sugar, and milk and sugar was brought. He said, Mom, give me fast, and he brought it fast. And he said, now taste the milk. He tasted, and he said, now add the sugar, stir. And he said, now taste. He said, taste it. What is the difference? He said, now it is sweet. So he said, why is it sweet? He said, it is common sense because I have added sugar. He said, then show me the sugar. He said, I cannot show you, but you can taste. So he said, in the same way that nothingness cannot be seen or can experience by your senses, but it can be experienced by meditation, samadhi. And if this experience becomes permanent, it is called self-realization. So Udalak that day decided that I have to be honest with this child. I'm not enlightened, I can't be his guru. So I have to send him to the highest enlightened guru of this time, and that was Gautam Rishi. So Gautam Rishi was as psycho guru as me. And Udalak was as honest as me. He would give 100% to his kids, to all the students alike. So he sent him to Gautam Rishi, and Gautam Rishi said, who the hell are you? He said, I'm Shwet Ketu, the brightest son of Udalak, and he has sent me to learn under you. Gautam Rishi said, learn? Gautam Rishi taught him the 4 Vedas and then sent him home. Shwet Ketu became a genius. To learn one Veda, you take 13 years. He learned the 4 Vedas in 1 year. And this brilliant boy came back home like a donkey. Why donkey, I will tell you later. श्वेत केतु के पिता उदालक बहुत ही ईमानदार थे मेरी तरह, तो उन्होंने गौतम ऋषि उस समय के सर्वोत्तम मोक्ष प्राप्त किए हुए गुरु के पास श्वेत केतु को सीखने भेजा, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास मोक्ष नहीं है तो मैं इसको मोक्ष नहीं दे सकता, तो पहले जाके इसको मोक्ष प्राप्त करने को दो गौतम ऋषि के पास.
भेजा था मोक्ष प्राप्त करने। और जैसे ही श्वेत केतु गया, कहा गौतम ऋषि ने, कौन है बे तू? कहा मैं श्वेत केतु, और उदालक नाम के सबसे बड़े गुरु है, आपसे भी बड़े गुरु है, आपसे तो 10 गुना उनके शिष्य है, मैं उनका सबसे तेजस्वी बच्चा हूँ, उसने आपके पास भेजा है सीखने को। बोला अच्छा, उदालक गुरु जी का बेटा है, तो सीख। तो क्या सीखना है? बोलता वेद। बोला सीख। चारों वेद पढ़ा दिए। एक वेद पढ़ने में 13 वर्ष लगते हैं, ये 4 वेद 1 साल में सीख के घर वापस गधा बन के गया। गांव में वाहवाह हो गई कि इतना ज्ञानी श्वेत केतु इतने वर्षों की पढ़ाई 1 साल में पूरी करके वापस आया। सब पूरे गांव वाले बाहर आए उसको देखने, सबने वाहवाहकार की। खिड़की खोली उदालक ने, जब वाहवाहकार हो रही थी, उसने देखा श्वेत केतु आया, उसने अपना माथा पीटा, अपनी पत्नी से कहा गलती हो गई, उसको भेज के गौतम ऋषि के पास। इसको भेजा था ब्राह्मण बनने, ये विप्र बन के आ गया, ये पुजारी बन के आ गया, ये पूजा पाठ करने वाला पंडित बन के आ गया, ये छोटा पंडित बन के आ गया। 4 वेद अगर सीखने होते ना, तो मैं गौतम ऋषि से अच्छा उसको सिखा देता, तो मुझे भी आते हैं। गलती हो गई। तब तक उदालक दरवाजे, श्वेत केतु दरवाजे पे आ गया। आगे क्या हुआ बताता हूँ, बहुत दिलचस्प है, सो मत जाना। तो when he returned to his village, the whole village was an ashram which belonged to his father, and his father would live on the peak, and everyone was like, wow, there was a celebration because Shwet Ketu came home. Shwet Ketu, in 1 year he studied, the 4 Vedas in his home, and look at his pride and look at his walk, and he was walking with his head high in ego, but pride. And his father opened the window from the peak of the mountain, and he saw down that my son is coming. He looked at his face and he patted his forehead, and he said to his wife, I made a mistake. I made a mistake by sending him to Gautam. He learned the 4 Vedas when he came back. If he wanted to learn the 4 Vedas, I would have taught him better than what Gautam taught him. But I sent him to be a Brahmin, and he became a Vipra. Vipra means the person who performs puja, and is coming back. I sent him to be enlightened, and he has become intelligent, and he's coming back. Big mistake happened. By the time while he was speaking, Shwet Ketu reached home. He touched his mother's feet, and when he went to touch his father's feet, his father said, no, you don't have the right to touch my feet. You have wasted. You have wasted your life. You have wasted your 1 year. You have wasted my whole life, my whole tapasya. I have sent you not to learn the 4 Vedas. I can teach you the 4 Vedas better than Gautam. I have better knowledge than him, but he has better wisdom. I've sent you to learn that which cannot be taught. I have sent you to see that which cannot be seen. I have sent you to hear that which cannot be said. Did you hear that? Did you learn that? Did you see that? And Shwet Ketu's mouth was wide open. He was listening to all this, half understanding it. And he said, no, father. So he said, then you are a useless child of mine. Never call yourself the brightest child of mine. Go back to Gautam and learn that and come back. अंदर आते ही पिता और माता को देखकर श्वेत केतु इतना अभिमानित, सम्मानित महसूस करने लगा कि माता पिता भी गले से लगा लेंगे, चूम लेंगे। माता के पैर छुए, पिता के पैर छूने गया। पिता ने कहा, बस, मैं समझता था कि तू मेरा मान है, तू मेरा अपमान है। तूने अपना जीवन नष्ट कर दिया, तूने अपना 1 वर्ष नष्ट कर दिया, तूने तो मेरा पूरा जीवन पानी में मिला दिया। मुझे लगा था मेरा जीवन सार्थक हुआ तुझे जन्म देकर, पर तूने मेरे सपने को चूर-चूर कर डाला। कहा, क्यों ऐसा कह रहे हो? जो 13 साल में 1 वेद नहीं सीख पाते बच्चे, तो 4 वेद में 1 साल में सीख के आया हूँ। कहा, नहीं, 4 वेद अगर सीखने होते तो मैं तुझे गौतम से अच्छे सिखा देता, मैंने ही गौतम को सिखाए हैं।
मैंने तुझे वो सीखने भेजा था जो सिखाया नहीं जाता, मैंने तुझे वो सुनने भेजा था जो कहा नहीं जाता, मैंने तुझे वो देखने भेजा था जो दिखाया नहीं जाता। क्या तूने देखा, क्या तूने सुना, क्या तूने सीखा? वो कहा नहीं, उसका मुंह खुल गया क्योंकि वो आधा समझ गया कि क्या बात हो रही है। तो कहा तो फिर वापस जा और गौतम के पास वो सीख के आ तुझे जो सीखने भेजा था। श्वेत केतु डर गया, वो मुंह नीचे करके अपमानित होकर, लज्जित होकर गांव वालों के सामने फिर से निकल गया और सीधा दौड़ता हुआ गौतम ऋषि के चरणों में गया, पकड़ लिया। गौतम ऋषि ने कहा, पागल, तू तो सब कुछ सीख लिया, तू तो मेरा आज तक का सबसे होशियार शिष्य है, तू वापस क्यों आया? श्वेत केतु रोने लगा, कहा वो आपने नहीं सिखाया जो सिखाया नहीं जाता, वो आपने नहीं सुनाया जो कहा नहीं जाता, वो आपने नहीं दिखाया जो देखा नहीं जाता। रोने लगा, वो बता दो। गौतम ने कहा, तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। So Shvetketu felt insulted, he felt like a loser, and he went back running to his guru. And he caught the feet of his guru. His guru was shocked. He said, "You are my brightest child. Why have you come back? You have learned everything. Now it's the time to have your own disciples." He said, "No. You have not taught me that which cannot be taught. You have not showed me that which cannot be seen. You have not told me that which cannot be said." Gautam said, "You didn't ask for it. You asked for knowledge. I gave you knowledge. Now what you are asking is very priceless. You have to do a lot of seva. These are 300 animals, cows and bulls together. Take them to the depth of the jungle where the sunlight does not touch the ground, which is so dense, which is filled with wild animals, and serve these animals, the bulls and the cows. And when these animals will become 1,000, you come back. And I will count if the animals are 1,000, and not all the animals. The bulls are separately. If the cows are 1,000, I will teach you that which cannot be taught. Shvetketu said, I will do anything, but I will not go without it. He took the 300 animals, cows and bulls, and took them to the deepest jungle, created a fence, so the wild animals will not eat up the cows and the bulls, and started living there with the cows and the bulls. The sky started passing. Slowly he forgot the language of the earth. And he started communicating with telepathy with the cows and the bulls, like they used to communicate. And one day the cows became 1,000. But Shvetketu forgot everything about his guru and everything else. So the wise bull said that why are we suffering in the dense jungle with the wild animals? Because of him. And he said, hello, come on, we are 1,000 now. The cows are 1,000. You come with us. So Shvetketu said, oh yeah, you people don't belong to me. You are my guru's property. I will take you to my guru. So he took the cows and he went to his guru. तो श्वेतकेतु घने जंगल में गया, वहां पे पेड़ इतने घने थे कि वहां पे सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आती थी। गुरु ने वहां पे कहा तो वहां पे उसने एक वर्दी बांधी और उस सीमा के अंदर वो गायों को और बैलों को लेकर रहने लगा। धीरे धीरे वो बातचीत करना उसने बंद कर दिया, भाषा भूल गया और गायों की टेलीपैथी की भाषा से, अंतर्मन की भाषा से ही गायों से और बैलों से बात करने लगा। जब गाय 1000 हो गई तब गायों और बैलों ने आपस में एक सभा बुलाई और कहा हम तो 1000 हो गए, अब ये जंगली जानवरों के बीच में हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे, इससे कहो कि भाई हमको लेके चले अब गुरु के पास।
तो एक बैल ने कहा कि भाई अब गाय 1000 हो गई है, चलो अब गुरु के पास। सब होश आया श्वेत केतु को कि अरे हाँ, तुम मेरी संपत्ति नहीं हो, गुरु की हो, उसको वापस करनी है। तो श्वेत केतु 1000 गायों को लेकर गुरु के पास जाने लगा और शिष्यों ने कहा श्वेत केतु आ रहा है, श्वेत केतु आ रहा है। गुरु ने कहा सबसे पहले गिनो कितनी गाय है, अगर गाय 1000 हो तो ही उसको आने देना, वरना उसको अंदर मत आने देना, उसको वापस भेज देना गायों के साथ। शिष्यों ने गिना, बोला ठीक 1000 गाय है गुरुजी। गुरुजी ने कहा ऐसे नहीं, मैं गिनूंगा। और श्वेत केतु आया और श्वेत केतु ने गुरु के पैर छुए, कहा गुरुजी गाय 1000 है। गुरुजी ने कहा गलत, गाय 1001 है। कैसे वो बाद में बताऊंगा। So when the wise bull counted and he said that come on, we are more than one, we are 1000 now, the cows are 1000, let's go. Shwet Ketu started, and when he was coming to the Guru's ashram, the kids saw that, oh, Shwet Ketu is coming with the animals. Guru said, first count the cows. If the cows are 1000, allow him to come and I will send him back. The students counted the cows and they said the cows are 1000. Guru said, I don't trust anyone, I will count myself. He counted. And Shwet Ketu came and caught his feet. He said, Gurudev, I have counted. The cows are 1000. Gurudev said, no, the cows are 1001. Gurudev brought a shining metal and showed him his face. He said, see, you have turned into a cow. Your eyes have become the eyes of cows. A person who becomes enlightened, his eyes becomes like the eyes of cows. And so the Vibhuti can give you self-realization. Also, with fame, money and all that I said. And then Shwet Ketu went to his house again, and then what happened again, I will tell you, but let me say this in Hindi. एक चमकीला धातु का पात्र लाके गुरु ने उसका चेहरा उसको दिखाया, देख तेरी आंखें भी गाय जैसी हो गई है, तू भी गाय बन गया, तूने वो सीख लिया जो सिखाया नहीं जा सकता, तूने वो जान लिया जो कहा नहीं जा सकता। श्वेत केतु ने कहा हाँ। तो गुरु ने कहा तो फिर आया क्यों बेवकूफ, वापस चला जाता वहीं से, गाय को तो छोड़ देता, गाय को छोड़ देता, वो मेरे पास आ ही जाती। कहते हैं ना, बेटी और गाय जहाँ दिखा हुआ जाए तो आ जाती सब। तो कहा नहीं, मैं और आप एक है, लेकिन फिर भी इस शरीर पे आपका उपकार है, इसके लिए आपको प्रणाम करने चला आया। कहा आप गांव जाओ। श्वेत केतु फिर गांव पहुंचा, इस बार बहुत विनम्र होके, गायों की आंख जिसमें जरा भी अहंकार नहीं, और लोगों ने उसकी चमक देख के कहा बाप रे, ये तो गया था कोई और आया कोई और है। और पिता ने खिड़की से देखा और कहा पिछले दरवाजे से मैं भाग जाता हूँ अपनी पत्नी को। कहा क्यों, अभी तो उसका चेहरा देखो, वो तो मोक्ष प्राप्त करके आया है। कहा हाँ, वो तो मोक्ष प्राप्त हो गया, उसने वो सुन लिया जो नहीं कहा जा सकता, उसने वो सीख लिया जो नहीं सिखाया जा सकता। तो कहा तो फिर दिक्कत कहाँ है? बोला वो आके मेरे पैर छुएगा, वो ब्राह्मण हो गया है, मैं विप्र हूँ, मुझे पाप लगेगा। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ और उनके पास ना मिले तो मैं भी गौतम ऋषि के पास, मेरे ही शिष्य है, उसको गुरु बना के उसके पास मोक्ष ले लेता हूँ। तो मैं भाग के जाता हूँ। तो पिछले दरवाजे से उदालक भाग गया। श्वेत केतु आया, माँ के पैर छुआ, बोला पिताजी कहाँ है? बोलते वो अपने गुरु के पास गए। बोला क्यों? वो सीखने जो नहीं सिखाया जा सकता। So Shwet Ketu, is Babita there online? Babita Patel is there online? Oh, so why are we repeating it in English? तो अंग्रेजी में क्यों हम दोहराए? और किसी को अंग्रेजी में नहीं चाहिए ना ये बात, ठीक है। तो चलो बोल देते, रिकॉर्डिंग है ना पिछले क्लासेस के लिए, इसके बाद जो होगी। तो श्वेत केतु ने कहा कि
हाँ गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा कि तूने वो सीख लिया जो नहीं सिखाया जा सकता, तुमने वो सुन लिया जो नहीं कहा जा सकता। श्वेत केतु ने कहा हाँ। तो कहा फिर पागल वापस क्यों आया, गाय को तो छोड़ देता, वो तो आ जाती जहाँ तू लान दिखाता वहां। तो कहा वो तो आ जाती, लेकिन इस शरीर पे आपका उपकार है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मोक्ष जो प्राप्त हुआ है आपकी कृपा, गुरु कृपा के बगैर नहीं प्राप्त होती, इसलिए आपके आशीर्वाद लेने आपके पैरों को छूने आ गया, अपने सर को आपके मस्तिष्क आपके पैरों में रखने आ गया कि जो गलतियां पहले हुई है वो वापस ना मैं दोहराऊं। और आशीर्वाद लेके फिर अपने गांव गया। इस बार गाय की आंखें थी और अलग ही चमक, पूरे गांव वाले चहकने लगे कि गया था तो श्वेत केतु आया कोई और है, देखो इसकी रौनक, इसकी आंखें देखो बदल गई है, गाय की आंखें हो गई। जिसका मोक्ष होता है उसकी आंखें गाय की हो जाती है। उसके लिए विभूति आपको भोग और मोक्ष दोनों दे सकती है, गाय की बनाई विभूति। तो जब श्वेत केतु आया, पिता चहल होने लगी। पिता ने खिड़की खोल के देखा और अपनी पत्नी से कहा मैं भाग रहा हूँ पिछले दरवाजे से। पत्नी ने कहा अब क्या दिक्कत है, अभी तो मोक्ष प्राप्त करके आया है, देखो उसकी चमक। कहा है यही तो डर है। बोला क्या डर है अब? कहा मेरे पैर छुएगा वो। इंग्लिश में रिपीट करना था ना। Oh, so when Shvetketu went to the Guru, he said that you have learned that which cannot be taught. You have heard that which cannot be said. So why have you come back? The cows would have come by their way. So he said the cows would have come, but this body is in debt to you. And I don't want to repeat the mistakes that I've done in the past. I don't want to go back to my bound state. So I've come to take your blessings. Always keep your blessings on me. I want to touch my head to your feet. Always keep your grace on me. And then he left. When he went to the village looked at him and saw a different aura and different eyes of it. And they were all whispering, oh my God, this is a different person who has come. Shwet Ketu went and someone else is coming. And they were so excited and listening to all this chaos. So Dalak opened his window and looked down and said to his wife, look, Shwet Ketu, our son has come. And when he came near, he looked at his face and he got scared. He said, let me run away from the back door. His wife said, what is the problem now? You look at his face, look at his eyes. They've become the eyes of cows. He's enlightened now. He said, that is the problem, that he's enlightened. He will touch my feet and I will be in sin. I will get sin if an enlightened person will touch my feet. Though he's my son, he's enlightened. If he's touching my feet, I will get the sin of a Brahmin touching my feet. I'm not a Brahmin, I'm not enlightened. Brahmin means not who is born at the house of Brahmin. Brahmin means who is enlightened. So he said, I'm going to my Guru, and if he's not able to give me enlightenment, I will go to my student Gautam and try to receive some enlightenment from him. So Shwet Ketu came home, looked at his mother, touched the feet, and said, where is father? Mother said, he is gone to his Guru. Shwet Ketu said, for what? Mother said, to learn that which cannot be taught. Huh? So this is the story of cow. The glow on your face will start increasing by applying bhasma, and your eyes will become like the eyes of cow, which have no desire in it, which have compassion for everyone. तो भस्म लगाकर आपके चेहरे की तो चमक बढ़ेगी, दुनियादारी की चीजें भोग तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी आंखों में भी परिवर्तन आने लगेगा, सबके लिए करुणा और नीरस होते। नीरस का अर्थ ये नहीं कि संसार से विकुट, भगवान राम की आंखें भी नीरस थी, लेकिन फिर भी दो बच्चे पैदा किए ना। राम रक्षा सूत्र में कहा जाता है उसके ध्यान में ही कि आसन पे सिंहासन पे बैठे हैं राम, उनकी आंखें नीरस है और कटाक्ष नेत्र से सीता को अपनी बाईं ओर देख रहे हैं। कटाक्ष नेत्र से क्यों देख रहे हैं? प्रेम भरी वासना भरी नजरों से देख रहे हैं।
क्योंकि नीरस का अर्थ ये नहीं है कि भगोड़े बन गए, साधु बन गए, संसार में उतना ही रस, वैसी गाय के जैसी आंखें हो जाएगी नीरस, लेकिन फिर भी दूध देती है ना, बच्चे पैदा करती है ना गाय, तो वैसा। हरिओम। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। हरिओम हरिओम तत्सत। तत्सत। जय आदेश। गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, हरिओम तत्सत। आदेश। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। जय गुरुदेव।